So, very good evening to all my dear students and all the viewers of this particular platform. Welcome all of you to CLC NDA qualifying section questions. तो आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो हम शूट किया है, इट्स ऑल द टोटल इंफॉर्मेशन regarding the answers of all those questions that have been asked in the previous year NDA, starting from 2021 to 2024. We have segregated the total number of questions into three groups. Especially, I'm talking about English because I'm the English faculty of CLC and I handle almost plenty of students, huge number of students, starting from the pre-foundation, starting from the foundation, target, NDA, and there are so many other things that I handle. Now, I have answered all the questions in three categories. First is the comprehension and composition section. Second, the vocabulary and the other part there, common errors, vocabulary and common errors. And the third part is the grammar. So I have segregated these three sections and all the questions have been implanted accordingly. So go through those questions. As you all know that any upcoming exams of the NDA, questions might have the chance to get repeated. दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चंस. तो मैं तो कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए और इनके आंसर्स को दिमाग में फिट कर लीजिए कि इनमें से अगर इधर उधर होके भी कोई एक सवाल आपको मिल जाए तो उसका गलत आंसर नहीं आना चाहिए. एंड स्पेशली जबकि आपको पता ही है कि एनडीए का जो लेवल है, इट्स नॉट सो बैड एट ऑल. इवन टफ भी नहीं है, यू कैन डू इट इजीली. जस्ट आपकी जो बेसिक नॉलेज है ऑफ इंग्लिश वो सही होना चाहिए. एंड 50 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. तो मेरा कहना है कि सारे स्टूडेंट्स, इफ यू फील लाइक दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनडीए, come and join CLC. I assure you to give you a successful career in this particular platform of NDA. So, very good morning to all the viewers of this particular video. Welcome you to the CLC platform. आज हम 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी NDA का पेपर्स हुआ है अब तक, उनमें जो वोकैबुलरी सेक्शन है उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हुए इन सवालों का उत्तर कर लेते हैं जो आपको पूछा गया है. लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. तो इसमें आपको caution वर्ड का सिनोनिम पूछा है, नियरेस्ट इन मीनिंग. तो करेक्ट आंसर होंगे चेतावनी, warned. The officer reported the details of the mission in a monotonous manner. Monotonous, बहुत ही boring manner. So the best option will be dull manner. Monotonous, dull. So this is the first to answer. एक का C और दो का A. Question number 3. There are many elusive questions in the philosophy. Elusive का synonym पूछा है जो philosophy में हमें समझ नहीं आता है. That means something which is baffling. Baffling. तो elusive हो गया baffling. Cleaning this mess is a mammoth task. ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत बड़ा काम है. Mammoth. The best option is huge. Number 4. 3 का B, 4 का A.
The police department's image was tarnished after the high profile murder case. तो tarnish का synonym हो गया tainted. Tainted. Number 5 का B. यहां पे पूछा है opposite in meaning, antonym. All human beings are fallible. Fallible जो होते हैं, जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो उसका विपरीत होंगे परफेक्ट. 6 का होंगे डी. His words were vague. Vague का मतलब होता है जिसका कोई सही मतलब that is not proper. Vague. तो उसका होंगे एकदम प्रॉपर, प्रिसाइज, टू द पॉइंट. तो करेक्ट ऑप्शन होंगे सी. 7 का सी. वेग का ऑपोजिट प्रिसाइज. 8. She performed all her duties conscientiously. तो वो अपने बहुत ही कंटेंशियसली वो अपना काम करते हैं. तो इसका ऑपोजिट होंगे स्क्रूप्यूलसली. तो इसका ऑपोजिट होंगे स्क्रूप्यूलसली. ओके. These risks are identical to the work of a firefighter. तो इसका opposite होंगे these risks are incidental to the work of the firefighter. Incidental का विपरीत होंगे महत्वपूर्ण, essential. The correct option is A. She has always been disdainful of poor people. तो इसका मतलब है जिनका कोई सम्मान नहीं करते वो डिसडेनफुल होता है. उसका ऑपोजिट होंगे रेस्पेक्टफुल. दैट मींस द बेस्ट ऑप्शन इज रेवरेंशियल. 10 का ए. ये पूछा है आपके नियरेस्ट इन मीनिंग, सिनोनिम. द किंग्स सन वाज बैनिश्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल राइवलरी. तो उनका बैनिश कर दिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर दिया. तो बेस्ट ऑप्शन इज डिपोर्टेड. 11 का ए. ही गेव अ dazzling परफॉर्मेंस एट द ओपेरा. तो dazzling हो गया अमेजिंग, शानदार. ये सेंस देते हुए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज ब्रिलियंट. 12 का ए. She rebuffed all suggestions from her friends. तो उसने अपनी फ्रेंड्स की सारे सजेशन को नकार दिया. तो नकारने का बेस्ट सिनोनिम इज रिजेक्टेड. नंबर बी 13 का. He disowned his royal legacy and become a commoner. तो disown करने का मतलब होता है त्यागना. तो that means the best option to go for is abandoned. 14 का B. The public was skeptical about the new government's policies. Skeptical का मतलब होता है doubtful, शंकालु. The best option is 15 का C. Question number 16. ये है आपके idiom का मतलब बताना है. Be bad news. इसका मतलब होता है ये someone who is considered undesirable, someone who behaves in dishonest way. तो यहाँ पे be bad news is of, to be very honest, someone who is considered undesirable. तो ये है आपके be bad news. The correct answer is C. Back to the drawing board. That means you have to start once again from the beginning, to start planning again, because the previous plan has failed. तो 17 का ऑप्शन होंगे C. Be in the eye of the storm. It means, that means हो गया, that means you be in the eye of the storm, to be in the midst of a controversy, to see something that you do not want to see. तो it means, तो आप अगर be, correct answer, to be in the midst of a controversy, be in the eye of the storm, यानी तूफान के बीच में फंसना. That means you are in the midst of a controversy. Life in the first lane. That means you are having a exciting and eventful lifestyle. 17 का D. To pass the buck, यानी हो गया जिम्मेदारी किसी और पर थोपना. That means to shift the responsibility
of something to someone. The correct option is 20 का B. 21. मोहन क्या पूछा है? Opposite in meaning. तो मोहन was living in a deplorable condition. बहुत ही खराब परिस्थिति में है, तो उसका ऑपोजिट है commendable, प्रशंसनीय. तो ये है आपके करेक्ट आंसर डी 21 का. These exercise will counteract the effects of stress and tension. That means कम करना, तो उसका बढ़ावा देना यानी बढ़ाने को exacerbate कहते हैं. The correct option is 22 का A. You have to persevere with difficult students. Persevere का मतलब होता है झेलते रहना और छोड़ देना, हाल छोड़ देना. That means the opposite should be give up. 23 का A. Their new color scheme is hideous. Hideous is kind of an ugly look. Ugly का opposite is always beautiful. The correct option 24 का B. Everywhere they go, they squander their earnings. जहां भी वो जाते हैं अपने पैसे दोनों हाथों से लुटाते हैं. तो that means squander, which means इसका opposite होंगे manage. The correct option is D. 26. इसमें पूछा है opposite in meaning. Many metals are malleable in nature and property. यानी कई metals होते हैं जो जिसका property बहुत ही soft होते हैं, यानी थोड़ा सा heat आते हैं वो पिघलने लगते हैं. तो इसका opposite होंगे hard. A. To neglect a warning is to invite danger. तो neglect का मतलब नजरअंदाज करना, और आपको ये मतलब किसी पर इंपॉर्टेंस देने को आप रिगार्ड कह सकते हो. 27 का C. ओके. His ostentatious behavior surprised everyone. तो किस तरह की बिहेवियर सबको सरप्राइज किया? उसकी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना. तो गैर जिम्मेदाराना का ऑपोजिट हो जाएंगे. द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डी, apparent. 28 का D. The experience of COVID pandemic was excruciating for much of the population. Excruciating का मतलब होता है तीव्र. तीव्र का ऑपोजिट हो गया बहुत ही हल्का. That means the best option to go for is mild. 29 का D. A trip to the hills was refreshing. यानी बहुत ही रिफ्रेशिंग यानी तरोताजा. तो तरोताजा का होंगे थकान भरी, और बहुत ही टायरिंग. तो उसका बेस्ट ऑप्शन होंगे वियरिंग. नंबर बी 30 का बी. नेक्स्ट कम्स एज ये है आपके होमोनिम्स. दैट मीन्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में डिफरेंस बताना है. तो प्रिंसिपल हो गया PLE मॉरल रूल, और प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो करेक्ट ऑप्शन है C 31 का C. Plane and plane. Plane means something that flies. So plane means something that flies and plane means flat surface. The correct option is C. Pale and pale. PALE का मतलब फीका पड़ना, और PAIL का मतलब होता है पतीला या बकेट, ऐसा कुछ जिसे हम टम्बलर वगैरह भी कहते हैं. तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर C. Pale means faded or light in shade, and pale means a bucket, PAIL. The correct option is C 33. मेटल एंड मेटल. मेटल वही होता है धातु, तो और मेटल का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग में भेजा, जिसे हम कहते हैं भेजा. तो मेटल कुछ तो भेजा होना चाहिए, यानी बुद्धि, इस तरह का चीजों को हम कह सकते हैं मेटल. METTLE. The correct option means the metal is a hard, shiny material that is good conductor, and metal means mental resilience. The correct option is D 34 का D. 35 hail and hail. HAIL का मतलब होता है बर्फबारी होना, यानी ओले गिरना, उसे hail कहते हैं. और HALE का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट. तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज B
Hail means pellets of frozen rain, and hail means strong and healthy. Correct option of 35 is B. 36 का है कॉन्शियस एंड कॉन्साइंस। तो कॉन्शियस वो होते हैं जिन्हें होश कहते हैं, और कॉन्साइंस वो होते हैं जिन्हें सही गलत का पहचान करना होता है। तो कॉन्शियस मीन्स अवेयर एंड कॉन्साइंस मीन्स सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 36 का डी। डिसेंट एंड डेसेंट, डिसेंट जो है वो है भिन्न भिन्न है, हो ना, भिन्न जो वर्ड है राय के तौर पर कि हर एक का राय भिन्न होता है, ये भिन्न सेंस लाने के लिए डिसेंट इज अ वेरी गुड वर्ड, SSENT। और डेसेंट का मतलब होता है गिरावट, नीचे की ओर उतरना। तो ये सेंस को देते हुए डेसेंट मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, and descent means having different ideas from general belief of the position. The correct option is 37 का A. Devise and devise, तो ये noun है, ये verb है, इसका मतलब उपकरण होता है, टूल, और वो होता है करने का तरीका, यानी कोई सूझना, कोई उपाय सूझना, ये सूझना भी डिवाइस होता है। तो बेसिकली द बेस्ट ऑप्शन टू गो is devise means a piece of equipment meant for accomplish a specific task, and devise means finding a new way to do something. Correct option is C, 38 का C. Discrete and discrete, एक discrete का मतलब होता है सेपरेट करना, और दूसरे का मतलब होता है खास तौर पे कॉन्फिडेंशियली किसी चीज को छुपा के रखना। तो ये वाला सेंस देते हुए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड डिस्क्रीट मीन्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। द करेक्ट ऑप्शन इज 39B। 40 का है एमिनेंट एंड इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, नामचीन, और इमिनेंट का मतलब होता है जिसे होना ही है। This means eminent means important and famous, and imminent means something about to happen. The correct option of 40 is A. 41 as the southwest monsoon, अच्छा ये आपका भरना है with the right word. As the southwest monsoon lashed through most of July, flash floods caused by the waters of the Narmada hit Jabalpur town. The correct option is A, यानी पानी का बहाव, lashed. Okay. Next, given the scale of the challenges that confronts us today, our company propose more viable plans for sustainability. Confront का मतलब जूझना. So the best option to go for 42 is C. 43, it is really tough course, and I'm just worried that I won't be able to get to the distance. ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाऊंगा, इस बात से मैं चिंतित हूँ. Worried that I won't be able to go to the distance. The dash, yani had, of advancement made in agricultural productivity in India has been remarkable. Yani had बताने के लिए the best option is extent, 44 का A. This essay एक्सप्लोर्स एंड एग्जामिन्स, ये एक्सप्लोर भी किया और जांच भी किया वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर अप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस adapted by society in the arid conditions of Rajasthan, dry, arid. The correct option of 45 is D. India has been able to successfully स्टेबलाइज इट्स पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर पाया थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, 46 का बी. एडोलेसेंस यानी एक समय काल है बिटवीन सर्टेन पीरियड ऑफ एज, तो वो जिसे हम यौवन काल कहते हैं. एडोलेसेंस इज द समय काल यानी पीरियड
wherein a child enters adulthood, जिसे हम यौवन काल कहते हैं. The correct option is D. The British who ruled India for 200 years were here too. हाँ, वो लोग यहाँ इसलिए थे ताकि भारत को एक्सप्लॉइट कर सके. To here to exploit India's natural resources को एक्सप्लॉइट कर सके. एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जो प्रजाति खतरे में है, जो जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं. हैव अ 50% और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ विलुप्त होने की यानी एक्सटिंक्शन विद इन 5 years or 2 years generation, whichever is longer. 2 generations, whichever is longer. 50. The first law of thermodynamics states that whereas energy can be transformed, energy को transform किया जा सकता है from one form into another. The correct option is D. 51. Nearest in meaning synonym है. He is always captious. Captious का मतलब होता है हर बार वो हर लोगों की गलती ढूंढने रखते हैं. तो गलती ढूंढने वाला यानी fault finding person है. He is always captious means fault finding. Geomorphologists ascertain several wonderful facts about our earth. तो जियोमॉर्फो ने वेरीफाई किया. वेरीफाई करने को कहते हैं ascertain. The correct option now is 52 का A. The colonel ordered the soldiers to meet him in the commissary. commissary का मतलब होता है कैंटीन, जहां बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, उसे commissary कहते हैं. The correct option of 53 is D. The doctor dismembered the patient's finger first and then cured the ailment. Ailment मतलब बीमारी. तो पहले डिसमेंबर्ड करने का मतलब जोड़ना, डिसमेंबर्ड का मतलब अलग करना. तो अलग करने का सेंस केवल और केवल डाइसेक्टेड से आता है, इसीलिए 54 का करेक्ट ऑप्शन इज बी. मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी. तो बर्सर का मतलब होता है अकाउंटेंट. द बेस्ट ऑप्शन इज बी. बर्सर का बी, अकाउंटेंट. His intentions are insidious. Insidious का मतलब धोखा देने वाला. उसकी जो इरादे है वो धोखा देने वाला. तो करेक्ट ऑप्शन इज deceitful. 56 का C. Respect for other human beings is intrinsic to the teachings of all religions. तो ये intrinsic जो है उसका मतलब जो जन्मजात होते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द बेस इटसेल्फ, जो केवल और केवल इनहेरेंट दे सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 57 इज सी. ही कंप्लीटेड द onerous task with relative ease. onerous task का मतलब होता है थकान भरी काम बहुत ही आसानी से कर दिया. तो थकान भरी का सेंस कम्स फ्रॉम डी. 58 का डी. Alfred was a potentate during the Middle Ages. Potentate का मतलब होता है सम्राट, राजा. The best option to go for is monarch. 59 का A. I abandoned the task due to indolence का मतलब होता है आलसी, आलसपन. तो the best option to go for is laziness. Correct option is B. 60 का. Next to go for is nearest in meaning. तो during the pandemic, the indigent people यानी गरीब लोग had to suffer a lot. गरीब लोग, very poor. Indigent. 61 का A. She had no idea what made him angry in 1 minute and jovial the next. तो jovial का मतलब पूछा है जो हंसमुख होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है. तो द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज mirthful. नंबर डी. 62 का डी. It is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather
ये पागलपन का सेंस लेता है, तो पागलपन का बेस्ट ऑप्शन इज इंसैनिटी, दैट इज 63 का सी। Operating a child with cancer needs meticulous planning and teamwork। तो इसका मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग, सही तरह का प्लानिंग विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, ऐसा प्लानिंग। द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज scrupulous। Scrupulous is the right word for meticulous। The thrill of overspeeding the vehicle, exhilarating, but it is important not to take can be the consequence likely। तो इसका मतलब एक्सिलरेटिंग का मतलब एक्साइटिंग, उत्तेजित, कि तेज गाड़ी चलाना बहुत ही उत्तेजित होता है, तो एक्साइटिंग इज द राइट वर्ड टू गो फॉर एंड द करेक्ट आंसर इज 65 का सी। 66, the redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, ओरिजिनल फॉर्म में आना, दैट मीन्स द रिट्रीवल। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 66 इज ए। Only 3 candidates are now in contention for the title। contention का मतलब होता है दावेदार, जीतने की दावेदार, द चांस ऑफ विनिंग। कंटेंशन, जीतने की दावेदार जो है वो सेंस लाने के लिए चांस ऑफ विनिंग इज द राइट ऑप्शन, 67 का सी। ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया इज इन द कार। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है सामग्री, जो हम मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं। द सामग्री का बेस्ट वर्ड इज एक्सेसरीज। द करेक्ट ऑप्शन इज 68 का बी। Public watched in astonishment as he took a sudden jump from the bridge। जैसे उसने ब्रिज से छलांग लगाया, सब कोई आश्चर्यचकित हो गया। दैट मीन्स सबको ये सोचने में आ गया। द बेस्ट वर्ड इज वंडरमेंट, 69 का सी। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यानी एक्सेसिव दारू पीना, इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर, तो ये एक्सेसिवनेस का बेस्ट ऑप्शन इज एक्सॉर्बिटेंट, 70 का बी। ये पूछा है ऑपोजिट इन मीनिंग, तो द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई मतलब स्ट्रेंथन, मजबूती देना, तो इसका ऑपोजिट हो सकता है वीकन, दैट मीन्स 71 का ए। नाउ वी कैन हैव अनदर dazzling thought as an outcome of my brilliant research। तो dazzling का हो गया बहुत ही शानदार, चमकदार, ये वाला सेंस, तो इसका हो गया फीकापन। तो फीका का बेस्ट ऑप्शन कैन बी murky, 72 का बी। 73, the group held some clandestine meeting to resolve the matter। clandestine का मतलब छुपा हुआ, hidden, तो उसका हो गया ऑपोजिट, तो पब्लिकली ओपन। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी, 73 का पब्लिक। इन द विंटर्स द कंट्रीसाइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। तो ब्लीक का मतलब होता है फीका, वीक, कमजोर, इसका सेंस है, और इसका ऑपोजिट कैन बी क्वाइट विजिबल, ग्रीनरी, इस तरह का सेंस ला सकता है, वर्डेंट। The correct option of 74 is B। Amid, बीच में, commotion, लड़ाई झगड़े के बीच में, the leader supporters remain passive and his supporters remain passive। तो ये the commotion का opposite हो गया, लड़ाई झगड़े का विपरीत हो गया quietude, यानी चुप रहना, quietude। The best option of 75 is A। 76, he had the audacity to blame him। audacity का मतलब होता है हिमाकत, वो साहस दिखाना जो नेगेटिवली लिया जाता है, जैसे बड़े बुजुर्गों से ऊंची आवाज में बातें करना, इसमें हिम्मत नहीं हिमाकत होते हैं। तो हिमाकत का आपको बताना है ऑपोजिटनेस, जो कि विनम्रता ही हो सकता है। द बेस्ट ऑप्शन इज 76 का डी, पोलाइटनेस। They are making plans for the abatement the nuisance within the specified time। तो abatement का हो गया कम करना, नीचे करना, और एक है इकट्ठा करना, बढ़ाना, तो उसका सेंस देने के लिए the best option is accumulation।
नंबर सी 77 का सी। There is exponential growth in the development of scientific researches in the recent few decades. तो exponential growth यानी काफी ग्रोथ, काफी का सेंस विपरीत होंगे कम, तो कम का सेंस ला सकता है मीगर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 78 इज सी। He was known for his sagacity, तो sagacity का मतलब होता है उसकी चतुराई, तो चतुराई का हो गया लापरवाही, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज इग्नोरेंस 79 का सी। द रिवर गैंजेस कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में आके गंगा नदी का अंत होता है, कल्मिनेट, तो शुरुआत हो सकता है ओरिजिनेट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी 80 का सी। यहां पूछा है नियरेस्ट इन मीनिंग। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलाइन हिम। मेलाइन का मतलब होता है किसी की छवि को धूमिल करना, बदनाम करना, तो ये काम सिनोनिम के तौर पे स्लैंडर कर सकता है 81 का बी। शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब होता है नाखुश होना, तो नाखुश होने का सेंस अगर कोई इसमें से दे सकता है तो वो डिस्प्लीज्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 83। डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल, यानी पहले का सोच मतलब लोगों के बारे में पूर्व अंदाजा जो प्री कंसेप्शन है वो एक प्रकार का नोशन होता है, तो नोशन कैन बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर सिनोनिम 83 का ए। 84 ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जैसे हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, तो नश्वर का जो भी होता है वो कुछ समय काल के लिए होता है, तो वी कॉल देम एज टेम्परल। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 84 इज ए। The itinerary of the group's visit to the hills was given to everyone. Itinerary means the details and schedule of a traveling journey. तो traveling journey का detailing को कहते हैं itinerary, तो that means the best option can be schedule. The schedule of the group's visit और information नहीं है, information नहीं, schedule है कि कहाँ से जाएंगे, फिर कहाँ रुकेंगे, फिर वहां से आगे कहाँ जाएंगे, इस ये टोटल डिटेलिंग है फॉर अ जर्नी, दैट वी कॉल इट एज इटिनररी। तो इटिनररी का बेस्ट ऑप्शन है 85 का सी। 86 द एफर्ट्स वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, टू कीप अंडर योर कंट्रोल, द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डी 86 का कंट्रोल। The fickle nature of humans is at times the cause of great innovations. Fickle minded का मतलब होता है एक जैसा सोच नहीं, हर बार बदलते रहना। Fickle minded ऐसे लोग होते हैं जिनका सोच हर मिनट में बदलता रहता है, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज vacillating. Vacillating is fickle 87 का A. The flood situation during the monsoon this year was calamitous. Calamitous का मतलब होता है आपदा संपन्न, आपदा का बेस्ट ऑप्शन कैन बी catastrophic, that means 88 का B। 89 he was appointed as the honorary member of the team. Honorary का सेंस जब कभी भी आ जाए that means you are not being paid, आपको सम्मान के तौर पे एक पद दिया जाता है, तो यू आर अनपेड। 88 का अनपेड। 90 द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस, तो चर्च ने उसे एक्सपेल बहिष्कार कर देना, द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर ए सी 90 का। ह्यूमन क्रेविंग कंफर्ट, इसमें ऑपोजिट इन मीनिंग पूछा है। ह्यूमन क्रेविंग कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। क्रेव का मतलब होता है पाने की चाहत रखना, तो ललक जिसे हम कहते हैं, तो क्रेव का ऑपोजिट हो गया नापसंद करना, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डिसलाइक। His writings on the subject are obscure. Obscure means something which is very vague है, vague मतलब साफ साफ नहीं बता रहा है,
तो साफ साफ का अगर श्योर सैंग्विनिटी लाना है, ऑपोजिट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज ऑब्वियस 92 का सी। 93, the achievements of the team have been monumental in the last 10 years. That means remarkable है, तो remarkable का मतलब हो गया unimpressive, opposite हो गया unimpressive, the best option 94 का D. His frail appearance was considered a merit. Frail means weak, कमजोर, और उसके opposite हो गया strong, मजबूत. The best option to go for is sturdy, 94 का C. The novel depicts the hapless status of certain sections of society. Hapless means miserable है, तो यानी बदकिस्मती का कह सकते हो, और इसका ऑपोजिट होंगे किस्मत, तो किस्मत का बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डी, 95 fortunate. Her ideas have always been eccentric. उसके आइडियाज हमेशा पागलपन होता है, नॉर्मल नहीं होते, तो नॉर्मल उसका विपरीत हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर 96 इज सी। 97 का हो गया, द लैंड अपीयर्स टू बी पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है ड्राई, ड्राई का ऑपोजिट हो गया वेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ, तो स्मूथ का हो गया उबर खबर वाला सेंस आएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज रॉटेड, 98 का ए। Plentitude is one major cause for environmental degradation, तो plentitude का opposite यानी पर्याप्त का opposite हो गया कमी, तो कमी का बेस्ट ऑप्शन इज insufficiency, 99 का बी। The scholar quoted irrefutable evidence for her thesis, the irrefutable का हो गया questionable, जिसका कोई irrefutable, जिसका कोई सवाल नहीं बन सकता, बिल्कुल सटीक, लेकिन प्रश्नदायक बन गया तो उसका विपरीत हो जाएगा, तो 100 का बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर एज डी, क्वेश्चनेबल। अब आते हैं हम ऑपोजिट इन मीनिंग, तो ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन, जो क्रूड के ऑपोजिट होता है वो रिफाइंड होते हैं, तो क्रूड ऑयल को हम रिफाइंड ऑयल बनाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। His confidence is high, तो उसका डिफिडेंस हो गया विपरीत, तो कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है डिफिडेंस, 102 का ए। His integrity is noticed, इंटीग्रिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, और इसके विपरीत हो गया डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर, 103 का डी। She is a benevolent individual, benevolent का मतलब उदार होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो मेलवोलेंट होते हैं, ऑप्शन इज सी। His sartorial manner is judged, sartorial का मतलब fashionable, और इसका ऑपोजिट हो गया unstylish, the correct option is A. This piece of art is authentic, authentic का मतलब रियल होता है, और ऑपोजिट हो गया fake, the correct option is D. The deluge affected the population, deluge का मतलब बाढ़ हो गया यानी flood, उसके opposite हो गया सूखा, that means B, drought. His dedication is known to all, तो dedication का विपरीत है, तो best option to go, dedication समर्पण होता है, तो समर्पण का होता है apathy, that means number C, 108 का C. His perspicacity was remarkable, तो perspicacity का opposite हो सकता है कि उसके dullness, perspicacity is something which is very prominent है, उसके remarkable है, प्रशंसनीय है, तो perspicacity उसका तो opposite हो सकता है only dullness, तो dullness is the correct answer for 109. He has penchant for spicy food, यानी spicy food खाने के प्रति उसके एक झुकाव है, तो इस झुकाव का ऑपोजिट है नापसंद, डिसलाइक, तो बेस्ट ऑप्शन इज डिसलाइक, पेंशेंट का 110 का डी। अब आते हैं नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग में आफ्टर अ गुड मील, इट इज गुड मील
इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। तो शेफ को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको टिप नहीं देते। तो तारीफ कैन बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज प्रेज। 111 का बी। हाँ, हम लोग टिप किसे देते हैं? हम स्टूअर्ट को टिप देते हैं, शेफ को नहीं। हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय का सिनोनिम है प्रेज वर्दी, तारीफ के लायक। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। राज इज कॉम्पिटेंट कार्पेंटर। कॉम्पिटेंट का मतलब काबिल हो गया, तो काबिल का बेस्ट ऑप्शन हो गया केपेबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ही इज डिलिजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। ही इज कंसेंटियस, यानी अपने कंसेंटियस बहुत ही अपने असाइनमेंट को करने में बहुत मेहनत करते हैं और टाइम पर असाइनमेंट्स प्रस्तुत करते हैं। दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी कंसेंटियस। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 114 इज डी। He appears to be reticent. Reticent का मतलब चुपचाप रहना, मुंह ना खोलना। तो that means you are in a state of being silent. The correct option is C. He is always jovial. Jovial का मतलब बहुत ही खुशमिजाज। खुशमिजाज का very option is A. Cheerful। 16 का 116 का A. Mohan remains morose these days. मोरॉस का मतलब दुखी, उदासी, ये वाला सेंस कैन ओनली बी ब्रॉट बाय सलन। तो 117 का हो गया डी। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, इच्छा ना जताना। तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर ए सी, अनविलिंग। 118। Amit is optimistic about the prospects of his investments. The correct option of optimistic is sanguine, जिस बात पर आप बिल्कुल सटीक sanguine मानते हो। Sachin is very cooperative by nature. Cooperative का हो गया बहुत ही साथ देने वाला। That means complacent. The best option to go for is 120 का A. Nearest in meaning चाहिए, तो he is essentially a low brow person. Low brow का मतलब हो गया very pathetic person. Pathetic person, तो ये हो गया आपके correct option. His nostalgia is deep. Nostalgia का मतलब पुरानी यादों को ताजा करना. That means longing. 122 का B. His truancy is detrimental. Truancy means ईमानदारी, loyalty. His truancy is detrimental. उसकी loyalty, ईमानदारी तो detrimental की जरूरत नहीं है, loyalty, truancy, loyalty यानी वफादारी। तो the best option is A. He is a maleficent person. Maleficent person का मतलब होता है criminal kind of a person. The best option to go for is C. 124 का C. His guest celebrated, यानी उसकी dignity, उसकी शान। तो that means the best option to go for is D. 125 का D. His bounty is limitless. तो उसके जो वो chivalry है, उसकी बहादुरी है, तो बहादुरी उनकी हिम्मत वो limitless है, तो हिम्मत का सेंस chivalry ला सकता है। The best option is D. The Holocaust यानी तबाही was experienced by millions. तो तबाही का बेस्ट ऑप्शन इज destruction. 127 का B. His aversion is known to all, यानी उसकी अत्याचार सबको पता है, तो अत्याचार का बेस्ट ऑप्शन इज hostility. 128 का B. To be able to decipher something is wonderful. तो डिसाइफल का मतलब होता है किसी कोड को डिकोड करना, उसका मतलब निकालना। तो दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डिकोड। 129 का A. It is the opportune time to think about investment in the real estate sector. ये सही समय है, तो सही समय का बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज appropriate. 130 का B. ऑपोजिट इन मीनिंग पूछा है, तो ऑपोजिट इन मीनिंग लॉपसाइडेड यानी इधर उधर का, तो ये ऑपोजिट होंगे बैलेंस्ड, एकदम सही संतुलित। ये असंतुलित वाला सेंस दे सकता है।
और उसके काम प्रेज वर्दी है, तारीफ के लायक है, तो उसका ऑपोजिट हो गया आरोप लगाने के लायक यानी कंडेमनेबल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 32 बी और 31 का डी। His deeds had retrograde results। तो retrograde का मतलब होता है गिरावट, पीछे की ओर आना, बैकवर्ड, और आगे की तरफ जाने का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव। द करेक्ट ऑप्शन 133 का ए। He always offers palatable solution यानी सीधा सॉल्यूशन, और उल्टा सॉल्यूशन, उल्टा का जो सेंस है वो ला सकता है केवल और केवल रिवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी का 134 का डी। नेक्स्ट इज हिज व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट और माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हमें देखना पड़ता है, बहुत ही स्मॉल है, माइन्यूट है, और इसका ऑपोजिट हो गया ब्रॉड बेस्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ए 135 का ए। He is always obdurate in his behavior towards other people। obdurate का अगर आप देखें तो वो बेसिकली वही होता है जो insensible होता है, obdurate, और obdurate in his behavior towards other people, और हमें चाहिए इसका ऑपोजिट, सॉरी इसका ऑपोजिट चाहिए, तो obdurate इज वेरी सेंसिबल होता है, और इसका ऑपोजिट हो गया insensible। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 136 का सी। मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, प्रोफाउंड मींस डीप, और इसके ऑपोजिट पूछा है आपको तो वो हो सकता है सुपरफिशियल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। वी वर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम, टर्ब्यूलेंट का मतलब उथल पुथल, तो उथल पुथल का ऑपोजिट हो गया काम, शांत। 138 का सी। अमित इज अ डॉगमैटिक पर्सन। डॉगमैटिक का मतलब होता है बहुत ही चिड़चिड़ा, ऑपोजिट मतलब हर तरह शंकालु, और एक व्यक्ति होता है बहुत ही दोस्तीपूर्ण, ये वाला सेंस ला सकता है ऑपोजिट। द बेस्ट ऑप्शन इज एमिनेबल, द 139 का बी। सचिन इज वेरी फिकल, फिकल ऑलरेडी हमने पहले भी किया है, फिकल माइंडेड दैट मीन्स जिसका सोच एक जगह ठहरता नहीं, बदलता रहता है, फिकल। और फिकल का ऑपोजिट हो गया स्टेबल। द करेक्ट ऑप्शन हो गया 140 का ए। अब आते हैं नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट इन मीनिंग हो गया हर स्माइल वाज कंटेजियस यानी वायरस की तरह फैलाव। तो कंटेजियस का मतलब कैचिंग, तो बेस्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे कैचिंग। हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो इसका कौन सा नेचर इंप्रेस किया सबको, तो वो हो गया उसका अटेंटिव नेचर, एंड द 142 का बी। शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, अपने किस्मत पर फूट फूट के रोना, लेमेंटिंग जिसका मतलब होता है बेमोनिंग। तो बेमोनिंग का बेस्ट ऑप्शन इज बी 143 का बी। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल तरीके से, तो नेचुरल का बेस्ट ऑप्शन इज नेचुरियल। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 144 इज ए। हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। तो उनकी बोलने की तरीके से, ओरेटर वही होता है वन हु स्पीक्स, तो दैट मीन्स उसकी साफ साफ बोली, दैट मीन्स एलोक्वेंस, स्पष्टता। तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज बी 145 का बी। शी इज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो पेट्रन का मतलब होता है वन हु बैक्स, पीछे से बैकिंग करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज 146 का डी। एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। तो एरोगेंस का मतलब यहां पे हो गया एक घमंड, घमंडी, तो वो सेंस ला सकता है केवल सी 147 का कॉन्सीट। The correct option of 147 is C. She undertook a reconnaissance of the entire issue। तो reconnaissance का मतलब हो गया पूरा बात का छानबीन करना, तो छानबीन का बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज इन्वेस्टिगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 148 का सी।
149, my daughter is my replica. जैसे वो मैसेज जैसे मैं दिखता हूं वैसे ही वो दिखती है. That means she is my clone. B, the sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. तो sardonic का मतलब हो गया मजाकी, मजाकिया, that means mocking. The best option to go for is 150 का C. Next comes is opposite in meaning. The opposite in meaning, he found her extremely attractive and charming. तो attractive का opposite पूछा है तो repulsive हो गया. Correct option of 151 का C. The sky is boundless. तो boundless का हो गया जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है. अनंत का opposite केवल finite ही ला सकता है. That is 152 का D. The sky is clear today. तो clear का साफ हो गया और अस्पष्ट का हो गया opaque. Correct option is opaque. 153 का B. I have a fascination for deep waters. तो deep यानी गहराई, तो इसका हो गया छिछला. तो छिछलापन का बेस्ट ऑप्शन is shallow. The best is D. My boss has been too generous. तो generous का हो गया बहुत ही दरिया दिल, और एक है बहुत ही शंकालु और कठोर, stingy, you can say that. तो बेस्ट ऑप्शन ऑफ 155 is A. Spring is a time of plenty. Plenty का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, तो उसका हो गया scarcity, कमी. So best option of 156 is B. He is an industrious workman. Industrious का मतलब बहुत ही मेहनती है, तो मेहनती का बेस्ट ऑप्शन is lazy. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 157 is C. Plants grow in abundance here. तो grow का मतलब होता है बढ़ना और सिकुड़ना. सिकुड़ने का बेस्ट ऑप्शन is shrivel. तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 158 is A. 159, she rarely comes here. कभी कभार आते हैं और हर मर्तबा आते हैं, यानी frequently. तो frequently का मतलब हो गया D. 159 का. She is rather crooked woman. बहुत ही निर्दयी, crooked, शातिर, शातिर वाला सेंस है crooked. तो और एक है बहुत ही सादा सीधा, straight forward. 160 का C. अब हमें fill in the blanks करना है. There was a time when West Germany was a distinct polity. Distinct polity. Number B. I was disappointed. Was के बाद V3 और ing ये दोनों लग सकते हैं. तो I was disappointed with the film, और ये देखो past perfect है, तो ये वह बेस्ट ऑप्शन है. I was disappointed with the film. I had expected it to be better. The correct option is 162 का A. 163, it was a terrifying experience. बहुत ही डरावने experience. Everybody was shocked. The correct option is C. अब देखो elephants जब कभी भी खतरे की घंटी देखते हैं तो वो आवाज करते हैं, तो इसे it's a kind of a cry, शोर. तो ये शोर वाला सेंस ला सकता है केवल whine. The best option is elephants whined when they perceive danger. The first film on Tagore was such a success that now they are going to make a sequel, उसका part 2. जैसे वो KGF वगैरह होता है, KGF part 1 part 2, तो इससे part 1 part 2 सेंस को कहते हैं sequel. The sequel is the right option to go for 165 का C. The United Nations had declared 2020, उन्होंने घोषित कर दी 2020 as the International Year of Plant Health. My brother is normally punctual. आमतौर पे वो punctual है, but he is late today. My son is very, very gullible. He trusts everyone.
Mahatma Gandhi was a lover of humanity and a staunch, यानी बहुत ही staunch believer है in the goodness of human nature. Human nature की अच्छाइयों पर वो पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति था. That means staunch believer. I wish I knew her before we met. I wish काश मुझे पता होता इनके उसके बारे में पता होता मिलने से पहले. तो ये बताते हुए I wish I knew her before we met. So here I complete the first 170 questions based on vocabulary and और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट आने जा रहे हैं जिसमें आपके बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे. So thank you for today and have a nice day. Thank you.